जी, हरियाणा के महामहिम आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, केंद्र में मंत्री हमारे चंडीगढ़ एयरपोर्ट ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ पंजाब के मुख्यमंत्री ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਓਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ एक दूसरे के नाल कोई गलबात करते नजर नहीं आए। एयरपोर्ट को तीनों यूनियन टेरिटरी दोनों प्रदेशों की सांझी चीज को इतों तक एक दूसरे दे वल देखते भी नजर नहीं आ रहे ताकि अजे भी इस मामले के उत्ते तकरार जारी है। मैं केंद्र सरकार ये भी अपने आप दे विच सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि एक रेजोल्यूशन, एक बैठक और एक विचारधारा की एकता हरियाणा और पंजाब ने करी। पिछले दिनों इस चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ। ਜੋ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਜਦ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਐਮਪੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ भी कोई गलबात हुंदी नजर नहीं आई। पंजाब दोनों बड़ा और छोटा भाई दोनों मन एक बना चुका है कि इस एयरपोर्ट का नाम इस महान शहीद के नाम पर होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये निर्णय तुरंत लिया और 25 तारीख को ये अनाउंस किया और मैं निर्मला जी का, वीके सिंह जी का आभार प्रकट करूंगा कि दोनों दिल्ली से आए इस ऐतिहासिक 115वीं जयंती के अवसर पर कि आकर उस महान व्यक्तित्व के नाम पर आज हमारा ये दोनों प्रदेशों का साझा एयरपोर्ट उस महान व्यक्तित्व के नाम पर कर रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, हम ये नामकरण, स्टैचू लगाना ये महान व्यक्तित्व के लिए इसलिए करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उन महान व्यक्तित्व को इसी प्रकार से याद रखती रहे, उनसे प्रेरणा लेती रहे। हमारे उम्र के युवाओं ने तो पढ़ा है, आप लोगों ने तो उस समय बुजुर्गों से सुना समझा होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे एक एक ऐसे क्रांतिकारी के पीछे पड़कर और उनको जबरन फांसी चढ़ाने का काम किया, गोली मारने का काम किया। और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब 15 साल की आयु में थे तो उन्हें भगत सिंह जी की सनात परेड में खड़ा किया गया और इस ऐतिहासिक अवसर पर जहां आज उनके नाम पर इस टर्मिनल बिल्डिंग को हम कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं
कि आज वैसे लोग जिनको सनात परेड या अलग अलग जगह प्रताड़ित किया गया, शहीद भगत सिंह जी को ढूंढते वक्त आज उनके परिवारों में भी एक गर्व की खुशी होगी कि उस अमर आत्मा को आज हमने अमर करने का काम किया। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, जैसे वीके सिंह जी पढ़ रहे थे कि 18,000 इंटरनेशनल पैसेंजर 18-19 में इस एयरपोर्ट से विदेश गए। आप 18,000 नहीं, जिस दिन यहाँ से विदेशों की, कनाडा की, इंग्लैंड की फ्लाइट्स रेगुलरली शुरू हो जाएगी, ये विश्वास दिलाता हूँ कि उस धरती पर भी हमारे ऐसे वीर योद्धाओं के नाम को हम अमर करने का काम करेंगे। मैं तो साथ में एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज हमें बिल्कुल जहां आज नामकरण किया है, ये संकल्प लेना चाहिए। और मैं भगवंत मान जी से खास तौर पर निवेदन करूंगा कि पंजाब और हरियाणा मिलकर इस खर्चे को उठाए कि हम यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्वरूप मूर्ति के तौर पर, स्टैच्यू के तौर पर 23 मार्च जो शहीदी दिवस होता है भगत सिंह जी का, उस तक इस्टेब्लिश कर जनता को समर्पित करने का काम करें कि आता जाता व्यक्ति हमेशा उनको अपना नमन प्रकट करने का काम करे। मैं साथ में ये जरूर बोलना चाहूँगा कि सिविल एविएशन के अंदर केंद्र के सहयोग से निरंतर बहुत योगदान रहा है, योगदान आने वाले समय भी रहेगा, मगर हरियाणा और पंजाब की एक साझी मांग भी है। जिस एयरपोर्ट पे आज खड़े हैं और जिस शहीद के नाम पर इस एयरपोर्ट को कर रहे हैं, आज हमें मिलकर यहाँ से इंटरनेशनल एक्टिविटी को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और केंद्र के सहयोग के बिना हमारे यहाँ पर, क्योंकि ऑन कॉल एयरपोर्ट है, रिस्ट्रिक्शंस है, एयरफोर्स का बेस भी है, उसको देखते हुए जब तक केंद्र का प्रोएक्टिव सपोर्ट नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट की एक्टिविटी भी हम उतनी ज़्यादा बढ़ाते हुए पाएंगे। मैं तो एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा भगत सिंह जी कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत जरूरी है, लाजमी है। और इस चीज को समझते हुए, देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि हमें आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के मन में भी वो हौसला, जज्बा और मजबूती से लाना पड़ेगा। दोबारा केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि हरियाणा और पंजाब के आग्रह पर इतने कम समय में आपने हमारी मांग को माना और इस वीर योद्धा के 115वीं जयंती पर आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बजाय अब जो आएगा जाएगा वो बड़े गर्व से कहेगा कि मेरी फ्लाइट है तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को अमर करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन करूंगा, एक